क्या था कि जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई कि अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा? What was the darkest period? This time when I couldn't sleep only. I am just lying down, but And my thinking, brain is overthinking, too much of overthinking thoughts. actually. And I used to pray to God कि मैं सो जाऊँ. मेरे son के साथ मेरा relationship भी अच्छा नहीं है. Did about you share this. with your friends? Did you share with your family? मुझे तो ऐसे भी कमेंट्स मिले मेरे फ्रेंड्स से, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसीलिए तू खड़ा कर रही है. So many young IT women professionals who are my clients. I don't know what is it with the IT job. I'm sure men, women, for both in IT, it's very difficult. It's very stressful. लगता है कि आप नौकरी कर रहे हो, घर चला रहे हो, बच्चे को बड़ा कर रहे हो, ठीक ठाक ही है. क्या हाँ. इसमें बड़ी बात है? बट अंदर से I'm वो बंदा ही completely जानता है कि broken. completely Even broken. I felt suicidal also. I would Oh. not hesitate to say I No, felt. suicide is the one of the biggest cause of death amongst young people in India today, and our proportion of suicide rates is increasing the global statistics. Hi, I'm Swati Banerjee. I am with Riri Trivedi on her Real People, Real Stories. Wonderful. So, hello everyone. I'm here today with one more guest on this podcast, Real People, Real Stories, where I have conversations around mental health. And every one of my guests is very special because ये podcast में मैं उन लोगों को बुलाती हूँ जिन्होंने अपने mental health के बारे में कुछ काम किया है, उसके ऊपर कुछ वर्क किया है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ, हमारे साथ शेयर करने की भी हिम्मत जुटा के आए हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा और मेरे गेस्ट का इंटेंशन हमेशा यही होता है कि इनकी जर्नी से आप भी प्रेरित हो, इनकी जर्नी से आप भी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करना नॉर्मलाइज करो. क्योंकि हमारे समाज में अभी भी सेलिब्रिटीज तो फिर भी बात कर लेते हैं अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, बट जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत बड़े हाइट्स पे, ऊंचाइयों पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, स्ट्रगल्स के बारे में बात करना इतना कॉमन नहीं है. और इसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, और लोग और भी ज़्यादा सफ़र करते हैं. तो मेरा एक ये छोटा सा कदम रहता है कि मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जो अपनी चैलेंजेस के बारे में खुल के बात कर सके. और आप लोगों के लिए मेरा बस एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे ऐसे रियल पीपल रियल स्टोरीज़ के पॉडकास्ट को सुनो, आप अपना जजमेंटल माइंड साइड पे रखो, एक नॉन जजमेंटल कंपैशनेट साइड से हमारे मेहमानों की कहानियाँ सुनिए, उनकी एक्सपीरियंसेस सुनिए, और कहीं ना कहीं इसमें से आपको क्या सीखना है, आपके लिए क्या मैसेज है, ये भी समझने की कोशिश करिए. Welcome, Swati. Thank you so much, And ma'am. I'm so grateful that you have come here to support me in this mission of normalizing conversations around mental health. Swati here is from Kolkata, but she's going to tell you more about herself. So I want to ask you, Swati, first, will you please introduce yourself to my guest? Tell us about, where are you from, what are you doing, and a little bit about your family. Yeah, sure. So I'm from Kolkata and I'm a working professional. I work for IT and it's a long journey. I'm working for almost 20 years now. I am a working mom also. I have a 9-year-old son, and yeah, and I stay in Kolkata, and I was definitely struggling with my mental health issues, and then I reach out to Riri ma'am and for her help, and then yeah, that's all. What Okay, we wonderful. started. So Swati, आपने when you decided to come on the podcast, okay, how was the reaction amongst your family members? Did you discuss, or did you just decide and say, okay, I'm going, or was that like a family discussion? Did you take into confidence other people? Yeah, so I think when I mean just I was asked, I thought that I will participate. I discussed with my husband, and he was very supportive on that matter, because he said that it's really necessary that we talk about it. Yes. And I also feel that there will be many people. There will be very less people who are really have the courage or the family support or the financial support that they can break this stigma and come out and talk about it. So Yes. that was very important, and that way I'm really blessed that I have those support systems, and I thought it is my social responsibility also. If anyone can get some help or get inspired, then it will be really,
I mean, I will be very happy to know that. Wonderful, Yeah, wonderful. because That's, one day I was there also at huh. that place, watching your shows, your reels, and I was going through a really traumatic phase of my life, I would say. And that helped me, or that gave me the courage to reach out for help, and that has changed my life extremely, and I'm so grateful for that. So that's why I think I owe this to you and Wonderful. No, no, to not to me, Wellness but Space. yes, no, no. Yeah. But be comfortable, okay? So we are going to Sure. just like generally talk, aram se, like you're हाँ, sitting and chatting. But so that's very nice because I think अगर मैं आपको 1.5-2 साल पहले शायद पूछती तो आपका अलग स्टेट reaction होता, होता, right? right, right. Because I have seen that people who have healed themselves see the world also very differently once they are healed. What do you have to say about that? उसमें आपका Yeah, क्या? sure, ma'am. I mean, when I was going through that depression and anxiety mode, I was like in a social anxiety. So coming in any podcast or coming to meet you or to talk to you, it would be a really Unthinkable. unthinkable. I couldn't get that courage. Also, I was not free also to talk about it, because you know there people talk differently about these things. हाँ, हाँ. Okay, so definitely I it would have been 2 years back, I would No. definitely not be ready for this. But because I have healed, now I see my life has transformed, I am in a better place. And also I know there are so many people who are still struggling, they are stuck, and probably they don't know how they come out of it, and it's a so much hopeless situation when someone you know falls into that trap. वो जो एक वो feeling, उससे मतलब बुरा कुछ हो नहीं सकता. हाँ, जहाँ पे तो आपको पता ऐसा है कि मैं यहाँ रह भी नहीं सकता हूँ, निकल भी नहीं सकता हूँ. You're just stuck into You're that stuck. place, and it is recursive. Like How was that for you? Like जितना भी आप comfortable हो, हाँ, आप sure. शेयर करेंगे कि आप ये कौन सी आपकी स्ट्रगल थी और क्या था कि जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई कि अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा. What was the darkest period and Yeah. what was it like? Right. So I think around October 2023, that time, suddenly I was like, I think I had some issues, but somehow I mean, I was like, करना ही है, काम करना ही है, ऑफिस का काम भी करना है, सब कुछ ही करना है. तो कुछ कैसे भी करके मैं पुल कर रही थी. तो फंक्शनल थी आप, मतलब Functional काम थी. कर रही थी. हाँ, मे बी मेरे अंदर वो सेल्फ वर्थ इश्यूज थे, लो कॉन्फिडेंस था, वो सब कुछ ही था, बट मैं काम कर रही थी. तो बाहर से तो दिख रहा था कि सब कुछ अच्छा चल हाँ. रहा था, बट अंदर ही शायद मेरा वो कभी भी नहीं था एक्चुअली. बट वो टाइम पे ना वो एकदम लोएस्ट मोमेंट हो गया जब मैं एकदम ही काम नहीं कर पा रही थी. मतलब दैट टाइम वाज लाइक आई वाज लाइंग अराउंड ऑन माय बेड, आई कुडंट डू एनी वर्क. एंड दो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग मदर, तो मेरा घर का सबका काम करना भी पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा भी है आपका, छोड़ सकती हूँ. तो मुझे तो पुश तो करना ही था और काम भी करना था, बट मैं कर नहीं पा रही थी. मतलब वो नींद से मॉर्निंग में उठ के भी ब्रश करना भी मेरे लिए बहुत हेवी क्या फीलिंग्स होता था. था? तो एक्चुअली क्या एकदम लगता था, लो मतलब एनर्जी, लो एनर्जी. हाँ, कंटिन्यूअस सैडनेस और एक एंग्शियस, बिकॉज मैं काम नहीं कर रही हूँ तो उसके चीज़ें पाइल्ड अप हो रहे हैं. और फिर ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझ में कोई ताकत ही नहीं है. तो एकदम एनर्जी नहीं है कुछ भी काम करने के लिए, जैसे कुछ नहीं लगता था. एंड मुझे लगता था कि मैं सोई रहूं तो आई विल फील बेटर, बट विच डजंट हैपन, बिकॉज मैं जब सोई रही हूँ तो मुझे हाँ वो गिल्ट फील भी हो रहा है कि मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, वो काम नहीं कर रहा है. तो आपके घर में सपोर्ट था, मतलब घर का काम बच्चे को बड़े करने? वो मैं एक्चुअली कर रही, घर में सपोर्ट था, डोमेस्टिक हेल्प्स वगैरह थे. अच्छा, बट यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली. हाँ, न्यूक्लियर फैमिली. इट्स मी, माय हस्बैंड एंड आई एम ओनली. सो इट्स ओनली, so everyone has their own responsibility. My husband is very supportive, but he has his उनका भी job. काम है. He has his job, he has to take care some part of my son as well. Correct. On top of it, he has to take care of me or my responsibilities for the family. That would be too much for him. Correct, Also, right? correct. So he also was getting affected a lot because of those things. So things were piled up, and then
देन फिर मेरा ऐसा था कि मैं तैयार भी नहीं होती थी, बाहर भी नहीं जाती थी, मुझे लगता था कि लोग जज करेंगे। ये सारे मतलब बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन फॉर एनी नॉर्मल पीपल हु आर नॉट गोइंग थ्रू के क्या होता है, हाँ, but बट this is इन for योर people who are माइंड, going through. I'm sure हाँ they can relate to एग्जैक्टली, it. इन योर Because माइंड, कितनी सारी women हैं जो working हैं, जिनको लग रहा है अरे ये तो काम कर रही है ना, एक बच्चा भी बड़ा कर ही रही है, बट अंदर से क्या चल रहा है स्वाति, हाँ वो कोई, किसी को नहीं हाँ पता. उनके सिर्फ फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि सुबह उठ भी नहीं पा रहे. एग्जैक्टली मैम, और वो सबसे बड़ा फीलिंग है क्या, और आप कोशिश कर रहे हो, मतलब लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, तो थोड़े थोड़े चीज, बट वो करना भी बहुत उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो तो जाता है। आपने फिर पहले क्या सोचा, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस ऐसा कुछ हाँ, आपने वो नेगेट मुझे किया? लगा कि पहले हार्मोनल इम्बैलेंस से, या पहले मुझे लगा कि शायद मैं शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि आज शायद सुबह उठूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा मतलब मेरा विशफुल थिंकिंग था कि कुछ मैजिक हो जाए कि मैं पहले जैसे बन जाऊं। हाँ. एंड आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड आल्सो कि ऐसा ना हो कि क्या डिफरेंस हो गया कि मैं सडनली ऐसा तो फील कर रही सडनली हो हूँ। गया ये क्या? हाँ, एक्चुअली एक इंसिडेंट था कि हम लोग ना होम रिनोवेशन का काम करवा रहे थे, और फिर एक दूसरे घर में मूव हुए, तो उसी टाइम पे वो फिर हो गया खत्म, और उसके बाद हम वापस आ गए, और उस रिनोवेशन में ना कुछ कुछ काम मेरा मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ, मतलब मेरा ही इनपुट था, मेरा ही सब कुछ था, बट फाइनली वो नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ एक। एंड एट द सेम टाइम मेरा ऑफिस में भी एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, मतलब मैं जिस असाइनमेंट पे थी वो खत्म हुआ, और दूसरा असाइनमेंट मुझे ढूंढना था। दैट्स लाइक अ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब काइंड ऑफ थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज, बट क्योंकि वो दोनों चीज साथ में आया, एक मुझे लगा, और शायद मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट भी थी, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे इम्पैक्ट किया कि मैं कुछ भी करूँ, क्या भी कोशिश करूँ, सब कुछ, हाँ सब कुछ ठीक नहीं हो तो सकता पहले है। आप ऐसे नहीं थी, योर नेचर वाज डिफरेंट, लाइक डिड यू जनरली हैव इन ग्रोइंग अप इयर्स, आपको ऐसा था कि डिप्रेशन हो जाना, लो नहीं एंजाइटी? नहीं, ऐसा था ना? नहीं था, हाँ हाँ. एटलीस्ट ग्रोइंग इयर्स में नहीं था। आई थिंक मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन टाइप तब हुआ था। हाँ, तब क्या किया था? तब तब मुझे हेल्प नहीं लगा था हाँ. जरूरत, बट वो ना एक्चुअली मेरा प्रेगनेंसी भी काफी क्रिटिकल प्रेगनेंसी था, हाँ, तो उसके लिए फिर डिलीवरी रिकवरी उसमें भी मेरा इश्यूज था। मेरे बेटे का भी थोड़ा मतलब वो ही वाज वेरी लो बर्थ वेट बॉर्न, ही वाज तो वो भी प्री स्ट्रेस. टर्म बेबीज था, हाँ 29 वीक्स में उसको डिलीवर करना पड़ा, तो ही वाज ऑन अ वेरी लो, तो वो सब एक काइंड ऑफ ट्रॉमा था मेरे लिए, ठीक है। तो वो उसके साथ फिर पोस्टपार्टम का जो डिफॉल्ट होता है वो था, तो तभी भी बहुत, बट आई थिंक वो भी एक्चुअली था शायद जमा हुआ जो रिकवर नहीं हुआ। मैं नहीं था, आपने दबा हाँ, दिया और मैंने चलने दबा लगे. दिया, हाँ, और मैं खुद को पुल करके चलो करना है अभी, आई कांट टेक बैक सीट, तो ऐसा करके मैं कुछ रिकवर हो गई। तभी मैंने कोई हेल्प वगैरह नहीं ली थी, बट आई थिंक वो सब कुछ था एक्चुअली जमा हुआ जो इस टाइम पे आके एकदम कि हाँ सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लो पे चली गई कि मैं फंक्शन ही नहीं कर सकती। ऐसा हुआ था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं उनसे नहीं हो रहा है, फिर लो कॉन्फिडेंस, फिर एक फियर, कांस्टेंट फियर एंड एंजाइटी, कुछ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो शायद मेरा हमेशा ही था। आई एम बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक हमेशा से ही, एंड थोड़ा ओवर प्रिपेयर्डनेस था कि हमेशा, वो परफेक्शनिस्ट हाँ लोगों का हाँ, रहता है ना, वो था, फिर सेल्फ डाउट कि कितना भी करूँ ऐसा, उसमें से भी कुछ क्रिटिसाइज करना खुद को कि ये और भी अच्छा हो जाना चाहिए था। तो ये सब के बीच आप चल रही थी, तो वो कौन सा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब तो आगे नहीं होगा, आई विल नाउ वेक अप एंड नॉट फील ओके स्टिल, मतलब यू से ना एवरी डे यू वुड थिंक कि कल अच्छा होगा, एग्जैक्टली, बट वो हो नहीं रहा था। और इसी बीच आपके हस्बैंड का क्या सिचुएशन था, मतलब was he worried or was he saying कि मतलब फैमिली मेंबर्स ने कैसे उनका था? फैमिली मेंबर में मतलब माय हस्बैंड इज द इमीडिएट फैमिली, लाइक आई डोंट स्टे विद माय पेरेंट्स, सो एंड दे डोंट हैव दैट नॉलेज आल्सो, हाँ, उनके लिए अनटिल और अनलेस you didn't share this with them or you did? इनिशियली आई थिंक आई डिडंट शेयर, फिर जब हमारा इंटरेक्शन वो आते थे या मैं कभी गई हूँ तभी उनको देख के समझ में आ रहा है कि ये तो सोई हुई है, काम है पड़ा हुआ, फिर भी तो दे रियलाइज्ड, बट दे डोंट नो हाउ टू हेल्प, दे विल से दैट यू फील बेटर, अच्छा फील करो, दे डोंट नो एनीथिंग ऑन दैट, पॉजिटिव थिंक करो या डॉक्टर को दिखाओ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
but I still don't think they have that outlook or they really could understand कि what is going on actually उसमें. तो मेरा हस्बैंड हमेशा से ही आई मीन ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली आई मीन पुशिंग me to go to the psychiatrist or the therapy session. So initially I reached out to a psychiatrist also for psychiatrist okay for the thing, but somehow that did not work out. एक तो हो सकता है कि मेरा भी मेंटल स्टेट वैसा नहीं था और उन्होंने जैसे बात किया ना बहुत ही लाइक काइंड ऑफ लाइक नॉर्मल जो मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं ना, अच्छा ये सिम्टम्स है तो ये दवाई है, ये गोली खा लो तो ठीक हो जाएगा. और उन्होंने बोला भी कि 6 months to 1 year लग सकता है, ऐसा होगा. वो सुन के तो मैं और भी अपसेट हो गई कि इतना लंबा, मतलब मुझे शायद कोई मैजिक चाहिए था जो विच इज नॉट रियलिस्टिक, हाँ नॉट पॉसिबल. बट तभी मैं इतना पेन में थी ना तो मुझे वही कुछ लगा था, बट वो नहीं हुआ. सो दैट डिड नॉट हेल्प. देन आई रीच्ड आउट टू अनदर थेरेपिस्ट ऑल्सो बिफोर रीचिंग आउट टू वेलनेस स्पेस. तो वो वहाँ पे भी मैंने काफी दिन किया. उनका ना वो कैसा थेरेपी था? वो CBT उन्होंने किया था, काउंसलिंग, हाँ काउंसलिंग टाइप. बट दैट वाज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर मी. मतलब ऐसा था ना कि मतलब वो थेरेपी सेशन, मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन में अटेंड करने के लिए भी मुझे मेरे हस्बैंड को पुश कर करके भेजना पड़ता था कि तुम बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था. मैं बात और वो तो फिजिकल था आपके यहाँ कोलकाता? नहीं, ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ही था. वो भी ऑनलाइन सेशंस ही थे. बट उसमें एक्चुअली वो शायद उन्होंने I don't think it was right for my issues. Okay. Probably. And I shared with her also, I think in the later part of that कि मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. मतलब वो आफ्टर डिस्कशन में भी वो कुछ देते थे कि ये होमवर्क करो, ये चीज आइडेंटिफाई. फिर वो मैं करती थी नहीं करती थी, बट वो भी मुझे एनर्जी नहीं मिलता था या कुछ, मतलब ऐसा बेटरमेंट फील नहीं तो हो रहा आपने था. गोलियां ली साइकियाट्रिक की? वो 1 महीना ली. फिर आपने थेरेपी कितने टाइम किया? थेरेपी काफी 10 months किया रेगुलरली? हाँ रेगुलरली लाइक. तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा? थोड़ा शायद पड़ा होगा. बट मुझे ना, मेरा तभी ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेट में भी थी ना, तो मुझे उसमें से भी अगर पॉजिटिव कुछ हुआ भी होगा तो मुझे दिख नहीं रहा था. अंडरस्टूड. हाँ, शायद मेरे हस्बैंड को लगता था कि ठीक है थोड़ा सा वो टाइम दो, इट विल टेक टाइम, ये ऐसे तो नहीं होगा. बट वही होता था कि मुझे कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट. और एक चीज ना, मतलब बिफोर एक्चुअली टेकिंग थेरेपी और गोइंग, कि मुझे भी वो शायद डाउट वहाँ पे भी था कि इससे कैसे हेल्प होगा. वो डाउट, you didn't know how it would help. हाँ, it would help. एंड फिर हम जो बात करते थे उसमें, आई थिंक थ्रू दैट फेज ओनली वन थिंग गुड हैपेंड इज she could I mean identify that I had that emotional negligence during my childhood. Emotional neglect. Emotional neglect during my childhood. Okay. And that she could identify, and then she also suggested that I think inner child therapy will help you. That also she could agree. So after that only, I think parallelly, I think I was looking, I mean anyway you search how to come out of, then those algorithm and YouTube things come up, and I saw your podcast videos and everything. On YouTube or Instagram? On YouTube. Okay. Yeah. I am not on Instagram. आप क्या सर्च करती थी YouTube पे? ऐसे ना एक्चुअली शायद वही डिप्रेशन को कैसे रिकवर कर सकते हैं वैसे, तो उसमें से आया. हाँ, आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ योर दैट राज शर्मानी YouTube podcast which was yours, ma'am. So there I think I could relate a lot of things with me. Actually my husband used to tell me कि you know you can go, but मैं थोड़ा डिनाइल पे थी. तभी भी हमने इतना ये वाला लो फेस नहीं आया था मुझे. और आप काम चालू ही रख रहे हैं? काम चालू ही. So job was continuing. That I can't. And you were raising your child also. हाँ, everything I was so doing. So externally you appeared so functional. हाँ, but exactly. internally you were completely broken down. See, this is the thing. लोगों को बाहर से लगता है कि आप नौकरी कर रहे हो, घर चला रहे हो, बच्चे को बड़ा कर रहे हो, तो मतलब ठीक ठाक ही है. क्या इसमें बड़ी बात है? बट अंदर से
I'm वो बंदा ही completely जानता है कि broken. completely Even broken. I felt suicidal also. I would not Oh. hesitate to say I No, felt no, suicidal you also. should not, because so Yeah. many people today, young people, you know, it is the suicide is the one of the biggest cause of death amongst young people in India today, and our proportion of suicide rates is increasing versus the global statistics because of this, because people don't talk about it. अगर आप बोलो तो उसको ऐसे लगे हाय ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो then Or I also, I mean, maybe logical mind, I could feel that it shouldn't be. I should not think Yes, in that yes. way. Or maybe जिस स्टेज में लाइफ में मैं हूँ, there will be many people who couldn't think of it कि इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी ये कंप्लेन कर रही, इतना अच्छा इसका supportive हाँ husband हाँ है, job exactly, है, जॉब है, बच्चा सब है. कुछ है, मतलब मुझे तो ऐसे भी कमेंट्स मिले मेरे फ्रेंड्स से, एंड दे आर वेरी डियर एंड नियर मॉन्स कि तेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसीलिए तू खड़ा create कर रही है. हाँ. ओ गॉड, ये हाँ. बहुत कॉमन है कि तुम और ढूंढ के that I प्रॉब्लम्स निकाल रही felt है. so hard, and because I know only that how difficult this phase is for me, and definitely just to get someone's attention I would not do that Correct, kind of correct, thing, correct, right? correct. So वही मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है until or unless you are really You have into gone that through it peak. yourself. Yeah. And I would like to say that I went through postpartum depression. This was 22 years ago, when postpartum depression की तो कोई बात ही नहीं करता था. And I was in Japan, और मुझे याद है कि I actually thought कि मेरे में ही कुछ problem है. हाँ मुझे भी लगा Because you कि know I was having feelings के why do I have these children? सुबह उठ के एक बच्चा क्या क्या कर रहा है, एक बच्चा 4 साल का है, मैं नए देश में हूँ, भाषा नहीं समझ आ रही है, weather different, और from a working woman I had become a housewife. And I remember, like you said, there were days when I felt कि I'll just kill myself. मैं सोचती थी मैं 9वें माले पे रहती थी, इधर से कूदूंगी तो क्या होगा, कितना मतलब, you know, exactly these things. हाँ वही And but back then there was no awareness of postpartum depression. There was no one to tell me that really you would be going through depression, this is normal after childbirth, you should do something about it. I thought I was the problem. हाँ exactly. And you know, the और biggest लोग- person to suffer is your husband. Exactly. And Immediate then- family. हाँ. Immediate family will suffer the And most. it took me so long, about a year and a half. And I'm sure my children also must have suffered because I was emotionally unavailable for them. मैं अंदर ही अंदर इतना गुस्सा मेरी लाइफ पे आ रहा था कि मैं गुस्से में ही सब काम कर रही थी. अब जब गुस्से में आप काम करना ही रहता है, but करना पड़ता है. आपको आपके बॉडी नहीं दे रहा है साथ. Exactly. And emotionally भी नहीं दे रहा है. Because of the responsibility you are doing, तो वो एक वो चिढ़ भी आ जाती है. बच्चे ना. पे चिढ़, हस्बैंड पे चिढ़, अपनी लाइफ पे चिढ़, परिस्थिति पे चिढ़ के कहाँ मैं फंस गई यार, यहाँ क्यों आई मैं, मतलब 2.5 घंटा इस्त्री करो. और ऐसा लगता है कि लाइफ स्टक हो गया है. हाँ. ये फेज तो मतलब अटक ही गया है, इससे तो हम आगे रिकवर कभी because आगे you don't know what's the way out. हाँ And exactly. आपने दवाई ट्राई की, आपने हाँ. काउंसलिंग ट्राई किया, CBT नहीं हुआ. Then what? So after watching your videos I could relate to my वो राज childhood. कंपनी वाला जो पॉडकास्ट देखा आपने. वहाँ पे कि कैसे मतलब I mean when parents looking for perfection or when they are emotionally not available, how it impacts your confidence, how it impacts your self-worth. तो मुझे वो लगा कि शायद ये रूट है और ये प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़े ऐसी बत्ती you could relate और to something. आपके जो वो टेक्निक्स है ना मैम, जो कि EFT वगैरह जो मैंने ऐसे देखा, मतलब ऊपर से मतलब जो वीडियोस के थ्रू मैंने देखा, मुझे वो लगा कि सिर्फ काउंसलिंग या सिर्फ बात करने से तो शायद नहीं होगा, और थोड़ा कुछ ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस समझ में आ रहा है मुझे, तो आई कैन गो फॉर इट, आई कैन गिव अ ट्राई, बिकॉज एनीवे वो नहीं हो रहा था. हाँ, correct, मतलब कुछ correct. anyway I am stuck, I am not able to. So you were looking for anything that you know you could try. हाँ, I can try. So वो और मतलब वहाँ पे तो YouTube में तो अभी हजारों चीजें मिलेंगे. हाँ, मतलब मैं वही सोचूं, बहुत सारे हैं. हाँ, कन्विंसिंग भी वो लगना चाहिए ना कि it's not only talking about कि जहाँ पे लगे कि हाँ सही में कुछ असिस्टेंस मिल रहा है पीपल. और आपके ही ये सारे आई थिंक पॉडकास्ट भी मैंने शायद 1-2 दिखे थे जिसमें लोग आके बोल रहे थे कि दे हैव रिकवर्ड, व्हिच गिव्स मी अ काइंड ऑफ होप कि शायद मैं भी हो सकती हूँ, एटलीस्ट आई कैन गिव इट अ ट्राई. दैट्स हाउ आई रीच्ड आउट. एंड देन so when you reached out, if I remember right, your scores were very severe on anxiety and exactly, depression, everything, well-being, and because you are speaking about it, I would say, well, the WHO score usually on 100, the threshold is 52. I think you came with 8, and by the time we closed your file, it was 76. So I mean, I was like, wow, what a journey. मतलब
8 well-being से 76, which is brilliant. And then all I still remember that very vividly कि वो आपका anxiety severe में से 0 हो गया था, depression कम हो गया था. So रात को भी ना मैं सो एक्चुअली ना फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई लव टू स्लीप ओके कि दोपहर को वीकेंड्स में अगर मिला तो आई विल टेक अ आफ्टरनून नैप आई लव टू स्लीप बट दिस टाइम में ना आई कुडंट स्लीप ओनली आई एम जस्ट लाइंग डाउन बट And माई thinking, ब्रेन इज overthinking, too ओवर much of थिंकिंग thoughts. एक्चुअली इवन रात को भी मैं सो जाती थी फिर आई थिंक 3-4 बजे तक आई थिंक वो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हाई होता है क्या होता है मेरा नींद खुल जाता वो है stress. एंड आई यूज टू प्रे टू गॉड कि मैं सो जाऊं क्योंकि मुझे पता है कि मॉर्निंग में तो उठना ही है बेटे का स्कूल वो भी नींद है वाला भी कुक एक भी बहुत आएगा खराब होता है. हाँ जितना आप फिर harder you try, the more हाँ, difficult it becomes. हाँ to और sleep. you will be with lack of sleep then throughout the day Throughout the आपको days of it. चलना भी है तो काम भी आपके करना है ऑफिस में भी किसी को पता नहीं चला था तब कि you are going you through so can't much. You can't. unfortunately we can't talk Did about you share this. with your friends? Did you share with your family? Or I think my immediate family knew. I talked with my parents, with my brother also. I mean, I was open about talking on whoever asked me or reached out to me that you don't and look. did you tell them then later on that you started therapy? How was Yeah, the reaction? Yeah. They at least on my face they didn't They say didn't say. anything. They were happy supportive. about That's it good. only. That's good. And I really don't care if they say anything nasty also. No, you've claimed back your life and happiness. Exactly. What It doesn't more would you matter. want? I know what I went through, and really, I don't care right now that even they say कि I am Absolutely, mad or absolutely. anything. I नहीं have नहीं some अभी other. I think now हाँ, times now are changing, people have you know, changed, people are हाँ. understanding. पर फिर आपकी जर्नी कैसी रही? तो आपने पॉडकास्ट देखा और आपको लगा अच्छा मुझे इनसे बात करनी हाँ, है. then I reached Reached out out to to the those office. numbers and they told me all the processes. Hmm. I filled up all those surveys and everything, which is really I would say, ma'am, The it is forms, very those forms self-assessment are forms. very helpful because that also a kind of reflection to us Yes. that what are the problems I have Yes. and also वो भी एक चीज है मैम ऐसा लगता है ना कि सिर्फ मुझ में ही है ये प्रॉब्लम बाकी लोग तो सब हंस रहे हैं दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ why I'm the only one am I creating it in my own terms because Yes. my immediate family is also happy apart from me I mean otherwise they That's are what you happy think. हाँ that's what I thought तो मुझे एटलीस्ट वो देख के लगता है कि फिर हाँ कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे भी गो थ्रू कर रहे हैं अरे वो हाँ वो काइंड बहुत ऑफ है. हाँ वो काइंड ऑफ एक एश्योरेंस है कि आई एम नॉट अलोन इन दिस और ये फॉर्म से फिर आपको बार बार भराए होंगे बिकॉज हम हर 4 सेशन हाँ, के बाद मेजर करते हैं कि वो भी आपका बहुत एंजाइटी important कितना है. कम हुआ, हाँ, डिप्रेशन कम क्योंकि हुआ. वो ना उससे प्रोग्रेस दिखता है हाँ, और आपके which is साथ so शेयर भी किया होगा. हाँ मुझसे भी शेयर किया है एंड वो बहुत हेल्पफुल क्योंकि मेरे साथ ना वो अर्लियर फेज में वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ डिफरेंस समझ में भी नहीं आ रहा वो मेजर नहीं किया हाँ, होगा वो तो आपने मेजर वो भी नहीं किया एंड क्या होता है ना फिर वो डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि क्या हाँ. फर्क पड़ रहा है मैं तो जा रही हूँ बैठ रही हूँ कोई फर्क और तो है हाँ नहीं. मुझे कुछ चेंज तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट हेल्पिंग So this is the thing, you know, in mental health, if you don't bring measurability, जैसे बुखार है तो मेजर कर सकते हो कि भाई 102 फीवर है, अब मैंने दवाई ली तो फीवर कम हो गया, राइट? सब चीज में आप मेजर कर सकते हो. मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम ये है कि अभी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स मेजर नहीं करते कि भाई आप आए थे तब कितना एंजाइटी था, गए तब कितना हुआ, या आए थे तब डिप्रेशन कितना था, 4 सेशन के बाद कितना, 8 के बाद. तो व्हाट हैपेंस इज पेशेंट को भी, क्लाइंट को भी ऐसा लग रहा है कि कहाँ प्रोग्रेस है, क्या है. और हमारा भी ऐसा है ना कि एक चीज सॉल्व की तो दूसरी आ जाती है, दूसरी तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं. तो जब हम ये फॉर्म्स भरवाते हैं तो नहीं, हमारा नहीं, ये वो- भी इंटेंशन है कि वो- हमें भी पता चले कि हाँ. हमारी थेरेपीज वर्क कर रही है कि नहीं, और एंड आपको पता क्लाइंट चले को कि भी problem- समझ में आए कि मैं जो अभी मतलब मैं जो कर रही हूँ उससे मेरा क्या क्या हाँ, और ये आपने ही भरे हैं. तो मतलब if you have only filled up well-being at 8 and then later on your well-being is at 50, Exactly. you know that the change has come. So how was your therapy journey then with your therapist? Yeah. Because okay, so I have not worked with her. Okay, so I want to say that very clearly, and she has worked with a therapist trained by us. So would you like to share how was that journey? Yeah, that was excellent actually. Initially, I think the first assessment was taken by Neha ma'am. Okay. How was and- psychologist? है Yeah, हमारी. Neha. and then I mean she only after going through my file and all the I mean from since childhood to सब all the आपका पूरा life history journey लिया, पूरा हाँ. history लेके she only suggested Kokila ma'am. हाँ. And then I think we had some issues in getting the time slots also because I am कोकिला also खुद IT प्रोफेशनल थी. हाँ, आपको पता I है know, ना? I know. I mean, yeah, In her that's why earlier life. it is really helpful actually because she could understand that the challenges of being an IT Professional, professional हाँ. because it is also a, I mean
one of the key factor to which and Kokila Shri, knowing her personality, she's also like a perfectionist, and so, and because our therapists have done their own journeys, they've healed themselves. I think somewhere they're also very compassionate, like with the clients' journeys, Yeah, because उनको right. पता है कि हम वहाँ थे और अभी हम निकल other पाए. side of the spectrum, right? Right. तो I mean, आपको मतलब she's कैसा रहा very वो journey? she's very empathetic. She helped me, and from the start, I mean, initially we were getting like little difficulty to get the mutual time slot, हाँ, because I was also looking for the हाँ, weekends and हाँ. all those things, but finally हो we गया. could and I was like little persistent that I would take help from her only also हाँ, that अच्छा. time, तो knowing आपका रैपो बन गया है. हाँ. आपको फिर कब से आपको ऐसा मतलब at what point did you feel कि ये भी पहले जैसी थेरेपी की तरह मतलब it's not ineffective? कब आपको लगा कि अरे ये तो इसमें कुछ work कर different हो रहा हाँ, है, हाँ, right? कब when did So you I feel think that? on the first session itself, I mean, interacting, I think it was a, I mean, instant connect, which I अच्छा. got, I mean, got to understand that there is a connect with ma'am. हाँ, Instantly कोकिला श्री के with साथ, हाँ. with Kokila ma'am I had, and somehow it felt. I mean, I remember after that session only I said my husband that I'm thinking that this will help. Wow, And very she good. did that humming thing also, which I think humming also helped me a lot for my anxiety and sleep issues. Those that way, that The method, techniques. that techniques हाँ. helped a lot. And then slowly it took time, because I had a lot of guilt, shame, and then pessimism, then lethargy issues. Some of them created by my own mind also. That क्योंकि कुछ अच्छा भी इनर होता चाइल्ड वर्क भी हाँ, आपके हाँ, साथ हाँ, किया होगा ना? हाँ, inner और child आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड के प्रोग्राम्स की वजह से ये हो रहा है? ये हो रहा सी है बिकॉज था। मैं हमेशा कहती हूँ, सी मैं खुद एक पेरेंट हूँ 2 बच्चों की, और मैंने भी गलतियां की है, पर मुझे हमेशा लगता है कि पेरेंट्स जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी हिसाब से इंटेंशन उनका अच्छा ही होता है, बट अलोंग द वे they do they don't certain things, they don't know how they are damaging the child. Exactly. right? तो और मैंने ये भी देखा, अपनी इमोशनल निग्लेक्ट की बात की, बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना पीना दो, पढ़ाई लिखाई कराओ, बेस्ट स्कूल में भेजो, अच्छे कपड़े दो, तो हो गया. इमोशनल बच्चे की ज़रूरतों के बारे में कम पेरेंट्स समझते हैं. आजकल के नए पेरेंट्स समझ रहे हैं, जो मिलेनियल्स है, जेनजी पेरेंट्स है, बट हमारे जनरेशन के पेरेंट्स को नहीं लगा था कि ये एक ज़रूरत भी है. Exactly. तो जो इमोशनल निग्लेक्ट से बड़े हो रहे हैं, वो उन लोगों में मैंने बहुत देखा है कि बड़े होके फिर देयर इज अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद देयर ओन सेल्व्स, विद देयर पार्टनर्स, विद देयर रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो हमेशा वो ढूंढते रहते जो बचपन में मिला नहीं. अप्रिसिएशन, लव, वैलिडेशन. तो आपका इसमें क्या अनुभव है? फुल 100% मेरे में इसमें भी था. और डिड यू हैव लाइक सिबलिंग्स? Yeah, How I was have your- an elder brother You who have an is elder like brother. 7-8 years older than me, and I was I mean, we are only 2 siblings. हाँ, हाँ. Okay, I was the younger one, and so मेरे upbringing में ऐसा हुआ था कि my parents full focus was on my brother. हाँ. So कंपैरिजन होता था? कंपैरिजन नहीं होता था, क्योंकि एक तो एज डिफरेंस था, एंड ही इज वेरी डिमांडिंग. ही इज नॉट वेरी इजी चाइल्ड. आई मीन, ऑब्वियसली द बॉयज आर लाइक, उस पे जाता होगा. हाँ, पूरा ध्यान उस पे जाता था. वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मम्मी उसके ऊपर ही लगी हुई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक व्हाट केम टू मी और ऑटोमेटिकली इज टू बी द गुड गर्ल. ये सो मैं अपने स्टडीज खुद करती थी कि मेरे लिए घर में और आप कुछ मतलब एडजस्ट हो जाती थी, क्योंकि ये कि इतना अटेंशन लेता है, तो मैं तो भाई शांति, घर के शांति के लिए क्लेश मैं, करूं घर में. तो मैं आई वाज वेरी स्टूडियस, गुड इन एकेडमिक्स, और मेरा भी वो शायद फोकस, अभी मैं जब रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ मुझे लगता है कि मैं वही, मुझे अच्छा लगता था तो मैं करती थी, बट अभी ऐसा इन रेट्रोस्पेक्शन में देखती हूँ, शायद वो था कि टू गेट द अटेंशन, yes, because he got attention in a negative way, but he still got the attention, right? Parents eyeballs were on him, focus was on him. So as a child you would feel कि यार मुझे कैसे अटेंशन मिले, एंड एवरी टाइम यू डिड वेल इन स्टडीज, आपको पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया होगा या कहा होगा? हाँ, वो मतलब या तो पुश किया होगा. हाँ, वो नहीं था एक्चुअली, फिर वो भी अप्रिशिएशन शायद But नहीं आप try था, करती बट मैं रही. ट्राई करती थी. हाँ, वो अप्रिशिएट, मतलब वो खुश होते थे एटलीस्ट, नहीं कुछ मेरे लिए, मतलब घर में कुछ
अनरेस्ट या लैक ऑफ पीस, ये कुछ झगड़ा वगैरह नहीं होता था, दैट वाज Good enough for me. हाँ, आई थिंक वो गेटिंग दोज अप्रिशिएशन फ्रॉम स्कूल्स, टीचर्स हाँ और थ्रू आउट, लाइक माई मॉम वाज लाइक के पढ़ाई में अच्छा होना ही है, हाँ तो टाइप फॉर बोथ ऑफ हर किड्स, तो वो भैया के लिए वो फोकस था, वो नहीं करेंगे, तो मेरे लिए वो आता था कि ये तो कर रहा है, वो होना चाहिए। बट जो मिसिंग था, आई थिंक आई वुड से कि उससे मेरा ऐसा हो गया था ना कि मुझे सब कुछ में अच्छा ही होना है, आई कांट फेल, I can't fail. And I have to keep doing something in order to be relevant, to be हाँ, valid, and to be loved. या एग्जैक्टली, दैट वाज एक्सट्रीमली माय थिंग, कि मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन नॉट बी लव्ड हाँ. without doing anything. I Yes. have to keep doing something to get love. And that is what drives you. शुरू में आपको इससे बहुत फायदा होता है because you do good in studies, people appreciate you, you get a good job, good career, good results. So you keep, it's like खुद पे आप चाबुक मार मार के दौड़ रहे हो, पर कभी कभी फिर आप थक जाते हो तो you feel ashamed, you feel guilt. And there is no fallback option for you actually. हाँ. And then there is guilt because then when you get tired and you can't even हाँ. get up, then you feel, oh my God, मैं ही गलत हूँ. How could, there's shame. How हाँ. could I How be could I like miss this? How could I not do something? this? How could, I mean, then I will not be acceptable. Yes. वो And somewhere we are not accepting ourselves. हाँ. So we think others won't accept हाँ, us, right? we fail in our own eyes. ऐसा ही Yes, होता है, इसलिए yes. तभी लगता है कि फिर इस लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ये कब रियलाइजेशन हुआ कि यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हो रहा है? So I think through this inner child journey, I could understand that all those traumas were there only, because I could recollect all the incidents where I felt neglected, or I felt being the second priority, or being the Not last important. priority, हाँ, being हाँ. not important, or you have to be always good on everything, you cannot do anything wrong also. हाँ. Then you will be scolded or something like that. So my parents were a very good provider. I mean, in that terms, I am really grateful to them. But I think they could not also understand. Like my mom used to say, like still she will stay कि उनके parents भी बोलते थे कि अपने बच्चों को हम क्यों appreciate करें, वो तो बाहर वाले करेंगे ना, हम खुद के तो I don't think she ever appreciated anything. उनको भी ये वो जनरेशन को ये भी कहा था ना कि खुद बच्चों को अप्रिशिएट करो तो सर पे चढ़ जाएंगे। हाँ. या तो समाज में भी अच्छा नहीं लगता कि देखो खुद के बच्चों का बैंड बजा, मतलब दे आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, तो इट इज नॉट considered as a good thing. But now in this generation or current situation, it is the only option, right? I mean, nobody will, I mean, it is not anyone's job to appreciate anyone else's thing. अभी तो वही हो गया तो है। वही चक्कर में we have a generation of kids who are so self-critical, so hard on themselves, you know, so driven, and always like not good enough, और करो, and in the process having stress, chronic stress, depression, breakdowns, right? So was there any particular time वो therapy में जब आपको लगा कि ओ ये मेरा ब्रेक थ्रू मोमेंट है, या ओ ये तो कुछ नया है, या ओ अभी मुझे लग रहा है कि देयर हैज बीन अ चेंज, ऐसा कुछ था कि इट वाज अ ऑनगोइंग स्लो स्टेडी प्रोग्रेस? आई थिंक इनिशियल मैम डिफरेंस समझने में थोड़ा टाइम लगा था मेरे केस में, क्योंकि इतना ज्यादा गिल्ट शेम था, और मैं वो कभी कभी कम बैक भी करती थी सेशन में कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा इम्प्रूवमेंट क्या हो। तो आपको ऐसा भी लगा था कि पता नहीं है आगे चलेगा कि नहीं? ऐसा भी होता नहीं, ऐसा नहीं लगा था, बट मुझे वो इफेक्ट समझ में आने में थोड़ा टाइम लगा था। कुछ आई कांट रिकलेक्ट के, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली हो गया और इमीडिएटली फर्स्ट डे से, वो थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस आया। बट और वो एक चीज था क्या मुझ में कि मेरा वो जो फियर था ना, कि उसके वजह से ना मैं आई कुडंट एवर स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, मतलब शायद मैं अननोइंगली पीपल प्लीजर बन चुकी थी अंदर ही अंदर। कैसी सिचुएशन, कैन यू टेल? मतलब मुझे अगर कोई कुछ बोले, इवन माई पेरेंट्स भी, तो मैं कभी उसको कन्फ्रंट नहीं करती थी, तो मैं वो सुन लेती थी, शायद मुझे बहुत बुरा लगा है, और वो चीज मेरा है, मतलब मैं अभी भी एंगर आई कांट शो। You will
gulp it हाँ, down gulp and फिर it out. और overthinking. फिर वो अंदर में रहता है और वो गुस्सा भी रहता है, बट आई नेवर कांट शाउट और क्रिएट अ सीन और एनीथिंग लाइक दैट. मतलब शायद वो मेरा खुद का कंडीशनिंग है या समथिंग है कि आई कांट डू दैट. मतलब वो शायद साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है और कुछ है तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता है. मैं चुप हो जाऊंगी मे बी फॉर 1-2-3 days, फिर वो ब्रेक लगेगा वो ठीक होने में. बट वो शायद मुझे लगता है कि वो मेरा हीलिंग प्रोसेस है, कि वो जो भी वुंड हुआ है या बुरा लगा है तो वो धीरे धीरे कम होता है. बट मेरे हस्बैंड को इसके लिए बहुत बुरा लगता है, मतलब कि तुम बात ही नहीं कर रहे हो. हाँ, ही थिंक्स दैट मैं कुछ मोरल ग्राउंड में खुद को हायर क्लेम कर रही हूँ. हाँ, कि मैं बिकॉज आई एम नॉट शाउटिंग एंड आई एम जस्ट, सो वो उसको बहुत बुरा लगता था. तो ये इसके वजह से ना इवन माई प्रोफेशनली ऑल्सो कि आई नेवर could not stand up for myself. So there are many issues which we face on a daily basis in IT. Well, it's very common, like political issues हुआ, project में कुछ हुआ. So I never, I mean, it could be because of my supervisor issues or maybe because of their designation. I would be afraid to speak up. I never could not stand up for myself. I think after therapy, it gave me that confidence. So when did you first notice that change? I had a very, during that process when I think in 2025, right, I was going through those therapy session. That time, in one project, it was very tough for me. So one day I thought that it's enough. I will ask for the release now. So then I spoke to my manager, my company manager, and I said that I will not continue in this project. So that was for me it was earlier also I may have thought about that, but never said that because मुझे वो लगता था कि पता नहीं फिर प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं, अगर ये बोल दिया तो मेरे अप्राइजल में इम्पैक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट चेंज किया तो उसमें कुछ रेटिंग्स खराब आ जाएंगे, तो ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस आई वुड थिंक एंड मैं वो करती, बट वो एक सफरिंग है. हाँ, तो व्हाट वाज योर लिटिल विंस, लाइक आपको क्या क्या अलग फर्क लगने लगा जैसे आपकी थेरेपी चालू हुई और फिर सेशंस होते गए? कौन से एरियाज में आपको लगा कि अभी यार फर्क है? एक तो ये मैंने अभी आई डोंट टॉलरेट एनीथिंग अनफेयर, जो पहले मैं करती थी. अच्छा. कि कुछ कोई बोल दिया तो मैं चुप रह जाती थी या सुन के. अभी आप क्या करते हैं? अभी आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ कि सी आई डोंट अप्रिशिएट बीइंग टॉक्ड like that. Acha, very good. So I will not. So were people around you happy with this change or not happy with the change? Some people are happy about this change, some people are unhappy. Because ये भी एक है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ऐसी होती है कि आप जब बदलो तो बहुत सारे लोग आपके बदलाव से खुश होंगे, बट बहुत सारे लोग आपके बदलाव से खुश नहीं भी होंगे क्योंकि उनको वो पुराने वाले आप ज्यादा पसंद थे और वो शायद अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाते थे पहले, जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम है. तो आपके फैमिली ने चेंज कब से नोटिस करना शुरू किया? व्हाट वाज द चेंज दैट योर फैमिली नोटिस कि अच्छा नाउ स्वाति इज I think after 5-6 months of therapy, they could figure it out कि I am more active, more happier. जो first thing which was missing immediately for last 2-3 years. तो सबसे पहला क्या बदलाव आया आपने? First you said taking a stand for yourself. उसके बाद वो energy, negativity, फिर वो anxiety. पहले I think the first change came in my sleep. अच्छा. My sleep improved, my anxiety reduced. These two things first. The first change. Behavioral wise, ये taking stand for myself. आप थेरेपी के अलावा वो प्रैक्टिसेस सेल्फ रेगुलेशन वो सब करती थी? हाँ, वो उसमें जो सी प्रोटोकॉल्स जो है सेल्फ हिप्नोसिस प्रोटोकॉल वो आप करती थी? वो करती हूँ और वो काफी इफेक्टिव है मेरे लिए. अच्छा. फिर हमिंग, EFT वगैरह. हाँ. तो वो सेल्फ रेगुलेशन, बिकॉज हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप सिर्फ थेरेपिस्ट के पास जाओ, चलो मुझे फिक्स कर दो, मुझे कुछ नहीं करना. इट डजंट वर्क. इनफैक्ट पैरेलली आपको भी खुद रोज कुछ करना है, हमें रोज कुछ करना है एंड देन हमें वो कंटिन्यू भी करना है, बिकॉज वो फाइनली हमें ही वो स्टेप लेना है खुद को रिकवर करने के लिए. वो शायद नेगेटिव चीजें हमसे निकाल देंगे तो वी विल फील बेटर, बट इन द करंट वर्ल्ड फिर से प्रॉब्लम्स आएंगे. एंड दिस थिंग्स विल
life will happening, not be a हाँ, bed of roses. They will exactly. keep throwing thorns at you, but once But you are capable to take care of it, you will find your ways. ways, right, And right. for that, self work is so important. So yeah. बहुत से लोग आते हैं कहते नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपके सेशंस दे रहे हैं ना, हम पैसे आप करो. It doesn't work that way. राइट, ये और वो सस्टेनेबल भी नहीं Sustainable है, नहीं है. करके भी दे दिया, फिर आगे जा चलना तो आपको है हाँ, ना, उसके करेक्ट. बाद हम तो फिर ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम्स लाइफ आएंगे. लॉन्ग थेरेपी लो. हम तो हाँ, इनफैक्ट आपने आपके केस में भी किया होगा, वीन ऑफ किया होगा ना शुरू में इंटेंस सेशंस, फिर धीरे हाँ, धीरे हाँ, कम धीरे धीरे करके, कम जैसे करके, आपको लगे करेक्ट. कि अभी जरूरत कम है, हाँ, तो वी एम के भाई हम पे डिपेंडेंट ना रहे हाँ, लाइफ लॉन्ग, करेक्ट. आप हाँ, चलते रहे. वही है कि खुद से मतलब आप अपना टेक केयर खुद करने खुद कर लगो, ले, कर सकते हो. वो प्रॉब्लम करके आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स आए तो वो उस हिसाब से मतलब वो बहुत ही इफेक्टिव है. आपने ये जो सेशंस लिए उससे आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, जैसे मैरिटल लाइफ में फर्क पड़ा, आपके पेरेंटिंग में फर्क पड़ा, कौन से एरियाज में आपको लग रहा है कि ये हेल्प लेने से, अदर देन जस्ट योर ओन issues, what were the other areas that also you feel? हाँ, आई थिंक मेरे पेरेंटिंग में भी फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे वो भी एक प्रॉब्लम था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सन के साथ मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है बिफोर द थेरेपी, आई एम सेइंग, बिकॉज माय हस्बैंड इज एक्सट्रीमली caring towards my son. He is really, I mean, very unique in that way. And उसके लिए उसके साथ मेरा बेटे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. तो I used to feel left out in that way. और my son, being a son, he is very like upfront कि तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, और it's like that. तो मुझे वो भी एक इशू था कि मेरा somehow something is missing in my parenting, क्योंकि और अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा शायद सही भी नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर भी है ना कि माँ के साथ बच्चे का ही बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. एक्सपेक्टेशन हाँ, है. ये एक्सपेक्टेशन है. तो कभी कभार वो जब दिखता है लोगों को तो लोग बोलते हैं अरे ऐसा तो नहीं होता है, इट्स समथिंग डिफरेंट. तो वो शायद मेरा भी सेल्फ डाउट और भी बढ़ाता था. बट या आई थिंक जो होता है ना कि क्योंकि मैंने जो पेरेंटिंग देखा है, दो आई अंडरस्टैंड कि दैट इज नॉट द गुड वन, बट अननोइंगली मैं वो खुद भी रिपीट करती थी, और वो इमोशनल नेग्लेक्ट था शायद मुझ में भी. तो वो फीलिंग्स फिर वहां पे भी आ जाता था कि यू आर नॉट लव्ड बाय योर सन. मतलब वो सेल्फ प्रोजेक्शन कुछ मेरा खुद का भी आ जाता था वहां पे. तो वो स्लोली और मैं भी वो थोड़ा करेक्ट करती थी शायद, जो मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लगता था, और मैं भी वो पैटर्न रिपीट करती थी. तो ये थेरेपी लेने के बाद मैंने खुद से वो कोशिश किया कि वो रिलेशनशिप पे वर्क करूँ, और मैंने अभी हाँ उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं करती हूँ उसको, या तो मैंने देखा है कि थोड़ा वो कनेक्शन बेटर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. हाँ, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. हस्बैंड के साथ बेटर है. आई मीन हाँ, उसको दिख रहा है. डज ही आल्सो नोटिस? हाँ, he is the immediate, I mean, receiver of good, bad, ugly, everything. उसने सफर भी किया है सबसे ज्यादा, मतलब जब भी मैं थी. और वो फीडबैक देते हैं क्या? हाँ, फीडबैक देते हैं. he can make out, like हम लोग ही अभी करते हैं कि ये लास्ट ईयर फॉर दिस न्यू ईयर हाउ वाज आई, और कोई पीटीएम सेशन में गए तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर में गई थी तो मतलब आई वाज फोर्सिंग माई सेल्फ टू गो समवेयर, और इस बार मैं खुद जा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को पुश कर रही हूँ. तो हाउ मच आई एम फीलिंग बेटर नाउ. तो और ऑफिस में वर्क में भी फर्क लगा? हाँ, वर्क में मतलब अभी मैं वही होता है कि मैं स्टैंड लेती हूँ, जो पहले नहीं करती थी. एंड आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट थिंग एनीवे. वो फिर खुद का भी उससे रिग्रेट्स बढ़ता है, एंड अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी मुझे लगता है उससे ये कम हो जाता है, मतलब योर डिग्निटी गॉट हर्ट ड्यू टू दैट. तो आपने आपके जो कलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ आपने डिस्कस किया था आपकी थेरेपी जर्नी, लर्निंग्स के नहीं? आप पर्सनल मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस किया था कि आई एम गोइंग थ्रू, के वो लोग पूछते थे क्योंकि सोशल गैदरिंग में नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो. तो आई यूज्ड टू से दैट कि आई एम नॉट डूइंग वेल, मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन गो थ्रू कर रही हूँ. फिर थेरेपी मैंने आई थिंक नेबर्स वगैरह से, रिलेटिव्स से बात नहीं की, क्योंकि कभी ना वो सब बारे में अनफॉर्चुनेटली बात होते भी नहीं है. हाँ, वो बहुत सुपरफिशियल जगह है. वो कपड़े, क्या खाना पीना, दिस दैट, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किधर, वही होता है. वो बहुत
नहीं बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड्स के साथ आपने हाँ, की बात? ये उनके साथ बात किया आपके है हैं मैंने। फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम है आपके? हाँ, बट है सभी, बट द प्रॉब्लम इज आई थिंक दे आर ऑल्सो इन द सेम पाथ। वो एक्सेप्ट करना ना, मतलब जैसे मैं जिस स्टेज में थी शायद वो भी अभी वहीं पे ही है, पर वो पहचान पा रहे हैं वो नहीं? पहचान नहीं पा रहे हैं। See, this प्रॉब्लम is ये the है कि problem डिनायल में happens. लोग रहते हैं ना। आई थिंक मेरे जैसा प्रॉब्लम बहुत लोगों को ही है, बट सबको लगता है कि आवर पेरेंट्स आर लाइक आवर गॉड, उनके जो भी अपब्रिंगिंग है उसको डाउट पर नहीं आपको कर क्या लग रहा सकते है कि ये हैं। थेरेपी के बाद आपके पेरेंट्स के लिए आपका क्लोजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ? पेरेंट्स के लिए आपका क्या फीलिंग बदला? आई थिंक फीलिंग सेम ही है, बट मतलब कुछ ऐसा नहीं, बुरा तो बिकॉज नहीं लोगों को हुआ ये है। लग रहा है कि जब हम इनर चाइल्ड थेरेपी करते, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करते, तो पेरेंट्स से नफरत करने लगते हैं या पेरेंट्स से इसकी वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, सो दे आर वेरी स्कैर्ड टू। व्हाट डू यू नहीं, फील? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट मेक्स दैट रिलेशनशिप बेटर एंड यू फील मच मोर एम्पैथेटिक, बिकॉज उनका भी आई थिंक वो जनरेशनल ट्रॉमा है, जो हर कोई वो बैगेज एक जनरेशन के बाद तो एक। आप समझ पाते हो कि जब खुद हाँ, को समझते हो, खुद के साथ अच्छे रहना आता है, तो फिर देन यू कंपैशनेट टू योर पेरेंट्स आल्सो राइट कि राइट, इनके वी फील इन्होंने भी लाइक शायद मेरी तरह एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि जर्नी की होगी शायद, और हाँ उनको हाँ, हेल्प भी नहीं था, अवेयरनेस भी एग्जैक्टली नहीं था। हाँ। और उनको वो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस भी और अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत लोग ना डिनाइल में रहते हैं, मतलब मुझे भी हाँ। वैसे ही लगा था कि अभी मैं बीइंग अ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू माय इंजीनियरिंग, देन मतलब बीइंग अ गर्ल चाइल्ड तो आई शुड नॉट कंप्लेन, हाँ, all the things are being provided to me, करेक्ट right? I mean, करेक्ट। I cannot complain कि मेरे पेरेंट्स ने जहाँ पे लोग बच्चे गिरा ही देते हैं, तो हाँ उस इंडिया में हाँ, रह यू के शुड बी हाउ, ग्रेटफुल। हाँ, I should be really grateful for that, but still I mean, still you have some So the impacts. difference is that in recognizing your pain and trauma, the objective is not to blame other people, but to recognize it and heal it so that you can even accept them Hmm, eventually, right? exactly. जब तक आप वो अपने दुख और दर्द और ट्रॉमा को समझते नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक आपको उनके लिए भी एक वॉल आ जाता है बीच में, उनके उनके साथ, राइट? प्रोटेक्शन के लिए, अपने Hmm. प्रोटेक्शन के लिए, या जो भी है। फिर आप पहचानते हो तो लोगों को लगता है कि इससे नफरत बड़ी, बट एक्चुअली कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि जिन लोगों ने खुद को हील किया है, हाँ, वो अपने माँ बाप के साथ इनफैक्ट ज्यादा क्लोज हो क्लोज हो जाते गए, हाँ, और अंडरस्टैंडिंग हैं, बढ़ती एटलीस्ट है। समझ सकते हैं, हाँ क्लोज नहीं हाँ तो इवन दे हाँ, रीच अ पॉइंट ऑफ और मे बी एक्सेप्टेंस कि आई भाई ऐसे ही आई हैं। थिंक बाउंड्रीज भी लर्न होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इवन जी। विथ योर ओन पेरेंट्स। हाँ हाँ। वो बाउंड्रीज भी ड्रॉ करना बहुत वो आपने, इंपॉर्टेंट आपका है। क्या अनुभव है उसमें? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं अभी बाउंड्रीज ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि मतलब आई थिंक माई मॉम हैज दैट क्रिटिक थिंग इनर इन क्रिटिक। हर, हाँ, इन हर, सो वो कुछ भी करे यू कैन डू दिस बेटर, और माय मॉम इज ये आल्सो लाइक दैट, शी इज हाँ, अ चार्टर्ड और अकाउंटेंट, कोई कुछ भी किया अभी भी कहती है तुझे साड़ी पहनना नहीं आता, चल मैं तेरे को सिखाती हूँ। माय साड़ी इज नेवर गुड फॉर हर। आई थिंक वो इंडियन पेरेंट्स के लिए देयर हाँ, चिल्ड्रन आर नॉट जब भी वर्थ फिर इट। मुझे 2-4 बार बोलना पड़ा कि एवरी टाइम आई कम तुम मुझे एडवाइस ही देते हो, और कभी कुछ अच्छा तो बोलो या तो हाँ, कुछ मत बोलो, ऑलवेज एडवाइस। मतलब इफ आई से एग्जैक्टली, कि और मैं वो 2 टाइम खाना खा रही हूँ, क्यों 2 टाइम खा रहे हो, 3 बार क्यों नहीं खा रहे हो, यू शुड ईट मोर फूड। अगर मैं कह रही हूँ नथिंग इज ओके फॉर हर, ओके, राइट? एग्जैक्टली, आप राइट एंड शी इज साइड में 90, आई एम 52, सो यू कैन इमेजिन, ये मतलब। ये चलता ही जाएगा, ये तो लाइफ आपने लॉन्ग का कैसे है। बाउंड्री सेट की फिर? आप हाँ, अभी क्या वही कर? मुझे, मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी वो जा रहे हैं, मैं वहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ कि एंड हाउ डज शी टेक इट? नहीं, शी डजंट टेक इट वेल, डेफिनेटली। आई थिंक वो उनका ना अभी आदत हो गया कि वो लेक्चर देना है, इट्स लाइक द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, कि हाँ, बच्चे तो फिर आप बड़े किस नहीं तरह से होते वो हैं। उसको बाउंड्री ड्रॉ करके फिर क्या होता है, फिर रिएक्शन क्या आता है उनका? फिर मैं कभी कभी आई थिंक डाइवर्ट कर देती हूँ, या मैं प्रोटेक्ट, बाउंड्री ड्रॉ करना मतलब मैं खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ, ताकि हाँ आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज हाँ। वो क्रिटिसिज्म हम समहाउ मेरा मुझ में बहुत इफेक्ट कर जाता है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मतलब वो फिर बाद में दिमाग में चलता रहता है, वो अफेक्ट करता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अभी कि स्टॉप कर दो, आई डोंट नीड दिस एडवाइस एनी मोर। तो वो करके मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट आप कर अपने पाऊँ। बंगाली फॉलोअर्स अगर मेरे हैं, तो आप उनको बंगाली में क्या कहना चाहेंगे अबाउट योर जर्नी, अबाउट मेंटल हेल्थ हाँ, आई वुड से दैट प्लीज टेक द हेल्प। इन ओह, बंगाली? इन बंगाली। आई वोंट अंडरस्टैंड मच बट তো প্লিজ আই মিন যদি কেউ এটার সাথে রিলেট করতে পারো যে এরকম গো থ্রু করছো, আমি সত্যি রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ
কাম ফরওয়ার্ড, আর কোনো এতে হেল্প নিতে কোনো প্রবলেম নেই আর কি, এতে খুব নিজের লাইফ অনেক বেটার হবে এতে, এটা সত্যি একটা ব্লেসিংস। कहीं पे भी जाओ, Hmm. whatever works for you, Yeah, right? right. In every aspect of your life, it is really, because until or unless we work on ourselves, we always expect ना other things will improve. ये क्यों नहीं better होते हैं? Because वो by default है हमारा nature, हाँ, हम वही expect हमको लग रहा है कि ये सुधरेंगे, जब मेरी सास सुधरेगी तो मेरी लाइफ ठीक हाँ। होगी, जब मेरा हस्बैंड सुधरेगा तो लाइफ ठीक हो जाएगी, मेरा बॉस सुधरेगा, मेरी हाँ। जॉब बदल जाएगी तो लाइफ ठीक हो या जाएगी। तो but मेरा ही लक खराब है इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। हाँ, अगर हाँ। ये नहीं तो होता ये तो आपने कब मेरा महसूस किया कि अभी कोई बदलने वाला नहीं है? हाँ, मुझे- वो आई थिंक वही पिन पॉइंट है जब वो समझ में आता है कि अभी ये कुछ नहीं बदलने वाला So है। was that empowering or disempowering to know that nobody changes but you have to change? आई थिंक इट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग इनिशियली टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि खुद ना चेंज होके दूसरे बदल जाए अकॉर्डिंग टू अस। आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग Yes. थिंग व्हिच डजंट हैपन, और वो बहुत उससे ही बहुत स्ट्रगल होता है। हाँ, फिर how did you तो- overcome? How did you cross that bridge? Now you are saying it in a very matter of factly way. कि Yeah, हाँ, नहीं right. बदलेंगे। तो वो वही मतलब वो शायद वही एक्सेप्टेंस है, वही सेल्फ वर्क है कि हमें ही खुद को वो कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके, कैसे हम वहाँ से बाहर आ सकते हैं, वही वो दैट इज द मोर एम्पावरिंग थिंग, राइट? आई मीन वी कांट कंट्रोल अदर्स, वी कैन ओनली कंट्रोल आवरसेल्व्स। That's what I'm saying. So some people look at it as disempowering कि और मतलब मैं कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, कोई भी नहीं बदलेगा, सब मुझे ही बदलना है. And the other way to look at it is look at this, that at least you have control over one thing हाँ, and that is on you. 100% in your hands. राइट, ऑन यू। हाँ, अदर देन आपने देखा कि जब आप बदले, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला, आपका हीलिंग हुआ, तो डिड यू नोटिस चेंजेस इन अदर पीपल्स बिहेवियर्स अराउंड यू? यस यस, जब मैं Can वो you share some बाउंड्रीज experiences? ड्रॉ करने लगी ना, मैंने देखा कि लोगों के रिएक्शंस भी चेंज हुए। मतलब आप जब तक बहुत अच्छे से पीपल प्लीजिंग स्टाइल में या ऐसे कुछ चलते रहते हो ना उनके ही इससे, द मोमेंट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अदर पीपल्स रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस, तो दैट इज रियली हेल्पफुल। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप वो मतलब changes in a boundary positive way or negative way? in a positive In a way. positive way, can in you a- give some examples? some examples, like I mean In any relationship, work, like I home, mean I'm relatives. talking about maybe our house helps also. हाँ, Sometimes they take it very lightly and they हाँ. try to impose whatever you I mean whatever they want to do, right? I mean हाँ. then you have to say, see, this is the rule, this is the thing which I want, you have to follow in this way, हाँ. in a very polite way. You हाँ, don't need हाँ. to be aggressive, or you don't need to say something very loudly or anything like that, but be firm in your tone. That And I that think helps? that helps. And consistently, if they don't listen in one time, try to say in a repeated way And that many helps. times, and that helps. Okay. Wonderful, wonderful. changes. Is there anything else you want to tell followers? Like आपने भी मेरे podcast देखे, हाँ, तभी हाँ, आप right. यहाँ तक आई, हाँ. आपने अपनी जर्नी की, अभी आप यहाँ पे बैठी हैं इतने लोगों को शायद अपनी बात सुनाने। तो जो लोग सुन रहे हैं, आप अपने दिल से, मतलब आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मुझे भी वही लगता है कि अगर आप पेन में हो, प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प। मतलब देर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प। और वो जो हेल्पलेस फीलिंग है ना, वो बहुत ही किलिंग वे है। मतलब वो उससे उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, कि ऐसा लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, और उससे आप रिकवर कर सकते हो, एंड देयर आर हेल्प अवेलेबल फॉर दैट। सो प्लीज रीच आउट। वो उसको नॉर्मलाइज मत करो, दिस इज नॉट द नॉर्मल थिंग जो आप गो थ्रू कर रहे हो। इफ़ यू आर इन पेन, इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, एंड that's the right thing. I mean that's the don't I mean go for the denial कि ये तो सबके साथ ही होता है, ऐसे ही जीना है, इसका कोई बेटर, बिकॉज ये मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों में है, एंड आई नो दैट दे नीड हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक वो ये आना चाहिए एक। आपको लग रहा है कि लोग ये भी कहते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ा बना देते हो? हाँ हाँ, You वो know? होता है, और सभी को तो ऐसे ही होता है, ये क्या है इसमें, इसमें ये तो लेके ही हर कोई चल रहा है, आई शुड नॉट कंप्लेन अबाउट, वही हो जाता है कि आई एम नॉट correct. वाइनिंग अबाउट इट।
So you feel even worse about yourself. हाँ, right? राइट के Already you are मेरा down भी in the dumps and then you हाँ, feel even more down. कि हाँ अभी तो कि इसके लेके कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए मुझे हाँ। ये फील हो रहा है वो भी मतलब इट्स काइंड ऑफ एंड ये ऐसा एक्चुअली है भी हमारा सोसाइटी में भी ना इसको इनवैलिडेट करने का एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है इफ यू आर फीलिंग समथिंग वी जस्ट ट्राई टू इधर डिस्ट्रैक्ट दैट थिंग और ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट अरे क्या है ये है इट्स ओके ये हम या और तो हमारा एग्जाम्पल दे देते हैं हाँ हाँ इवन फॉर द पेरेंटिंग पर्पस हम लोग बोलते हैं राइट मदरहुड इज डिफिकल्ट एंड ऑल हाँ आप कभी भी मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है हमारे सोसाइटी में कि कोई भी लड़की जब वो गो थ्रू कर रहे छोटे बच्चे नींद नहीं हो रहे अरे हमने भी किया है ऐसे तो सभी करते हैं दैट डज नॉट रिड्यूस हर पेन Yes, राइट correct. या इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवेयर इन हर हमने भी पेन फील किया है वो भी कर रही है तो एटलीस्ट वी कैन एम्पथाइज yes देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी इन in our the society that's the हाँ problem हाँ we so should that be is- much more empathetic towards everyone वो Is there any missing. message you would want to give your husband who has been so supportive? He's taking care of your child while you are here. right yeah I'm really blessed and grateful to him because he has supported me immensely I think it would be impossible if he would not be there because he constantly pushed me बिकॉज ये बहुत ज़रूरी भी है आई थिंक बहुत लोग नहीं आगे आ पाते हैं बिकॉज उनके पास वो सपोर्ट नहीं है कोई एक पीछे रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कॉन्स्टेंटली पुश करे अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के पास वो भी नहीं नहीं है तो आपके पास है तो तो एटलीस्ट यार आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे आई एम रियली wonderful ग्रेटफुल wonderful and thank you so much to Kokila ma'am I would always say I mean she has been a great support because मैं ऐसे पीठ पे थी ना कि किसी को चाहिए to pull me out मतलब मैं खुद से नहीं कर पा रही थी और वही था कि थ्रू आउट माई लाइफ ना आई एम ऑलवेज कंट्रोल ड्रिवन कि मुझे अपना टेक केयर खुद ही करना है मुझे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है ताकि मैं लोगों के बात नहीं सुनना है मुझे हाँ। खुद का ही करना है और वैसे ही थी टिल नाउ के मैं मुझे बट देन व्हेन यू आर इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी एक्चुअली यू कांट डू एनीथिंग एंड दैट्स व्हाई यू फील दैट देन तो देयर इज नो मीनिंग टू दिस लाइफ आपने थेरेपी कब बंद करी अभी भी ना मैम एक Once in a while हाँ करते वंस इन हो। अ मंथ है पर वो इंटेंस सेशंस आपका इंटेंस सेशन खत्म हुआ है अभी भी आई थिंक 2-3 सेशंस बाकी है मेरा हाँ 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 तो वो मंथली एक Once ही a month टारगेट करते है हो। हाँ, जब भी हाँ, कोकिला मैम का हाँ, वो हाँ, टाइम हाँ। होता है तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब क्रिटिकल पीरियड होता है तो हम इंटेंस सेशंस करते हैं फिर हाँ। धीरे धीरे तो वंस अ वीक होता है कम हो फिर जाता है वंस इन 2 वीक्स होता है फिर वंस अ मंथ होता है फिर नीड बेसिस पे कभी कभी correct. क्या होता है चेक इन करना हाँ जरूरी हाँ है नहीं वो भी जरूरी sometimes. हाँ कभी इफ यू फील because ओवरवेल्म life is never going to हाँ, always right, be right. smooth na you will and have being an IT professional na that is also another side I wanted to ask you, as an हाँ. IT professional, are there any specific challenge? Because I'll tell you something, I have so many young IT IT women professionals who are my clients, who come to us. I don't know what is it with the IT job, but is it stress, It's competition, extremely जो भी है? stressful, तो उनको आप extremely क्या कहना चाहोगे? firefighting. Women like you who are working in IT, managing homes, children. It's very challenging. It's very challenging, and I mean, you really need some help definitely because otherwise, actually, it's not Do you only feel that women, having for friends and men social also, support I helps? think, yeah, for men, ma'am, I would like to say, I mean, I would not be taking any name, but last year only, I lost one of my dear senior in IT also. He jumped from the office building itself. I know it is all over in the newspaper and everything, and he God. was going through depression. I Men heard. are I don't not know the allowed to reason. talk about it हाँ, also. yeah. The main for men, so it is even difficult. I mean, I'm sure men, women, for both in IT, it's very difficult. It's very stressful. Men have Life, additional it's burden. They are conditioned from हाँ. childhood. कि You have to take it all. You have to carry the burden of your wife and children. You are responsible for everything. So men You can't have talk more- even. I mean, that is the. I think for women, at least they share it in their with their friends Men or are not. men are not allowed to. I think they don't feel like talking. Men feel also open. need to support men ना. हाँ, right. मतलब if a man says कि मेरी बीवी मुझे मारती है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं. कौन उसको empathy sympathy देता है? पर ये भी reality है. आज domestic violence में ऐसा नहीं है कि सिर्फ husband beats the wife. I know so many wives who are abusive, who have anger issues. But the husbands are not able to go and talk about it. And the laws are also in the favor of the wife. Oh, that is even worse. So it's a right. problem. So yeah, women, IT, working women. Anything that is your mantra
for keeping good, happy, for your well-being? Like any one thing that you do every day. Do you think rituals help? Do you think reading books help? आपने ये सब चीजें इसमें से कुछ किया है? I think meditation help, and that self hypnosis technique actually That you are doing. that I'm doing on a regular basis. That is Did you read any humming. books? Did any books help? I would love to, but I don't get You don't time, get time. honestly. Ah. I don't get, otherwise I will sleep while reading the book. I got so tired. That's the only thing. But definitely reading helps. And this social media addiction is also another culprit. You are I not mean- on social media. No, I am on social. Is it? I am not active in contributing, but Oh, I am consuming. okay. So It's a big problem. it's a big problem. Watching reels and everything, it is help. Definitely, that's how we can reach out to Yes, yes. and get all the help. Definitely, it is helpful. But yeah, there is also a curse with it. Yeah, that's the problem. I think that if we could avoid that, that will be also helpful, because that is also a contributing factor for this. Yeah, you compare your anxiety. lifestyle, you Haan, compare your exactly. everything, your body, your what was your trauma score, ACE score? I can't remember. You can't remember. Okay. Was there any bullying or anything in school? No, not No, not bullying much, not part. I mean, it was like, I don't know. I mean, maybe it was regular Were type. you I think. were you an introverted child? No, Extroverted. extrovert. Okay. Like not extro. I think ambivert. Right? That is okay, the okay, word okay. in between. So there was no isolation in school and all No, that. no, nothing Okay. like that. Okay. Yeah, that was not there. But yeah, so I think main issues were like the self-worth. Do you think issues. marriage also contributes to women's stress? Getting married, going to a new house, interacting with new people. I'm asking this because a lot of new generation is questioning. Yeah, marriage contributes some part of it definitely, but I think you need to. I don't know. I mean, there is always a other side of the story. There will You be. have a supporting husband, so that Yeah, may I have been had really supporting, good. but that doesn't mean I didn't have problem also. That was there. Okay, I mean, the Like I mother-in-law got married at issues and 21. I every. do remember that it was hard for me It definitely also it was adds to hard, it. but thankfully, because we were nuclear family, we were not always staying there, but still I had faced a lot of it. Being a working woman in a nuclear family, having no support, parental support or relative support, do you think that is more difficult for your mental health journey or it is easy for your mental health journey? Do you think? I would say it is easier for my mental health journey, because having my parents or my in-laws would have contributed more. It would have made it more complicated? More complicated, because even for my, see, I am not so close to my mother-in-law, so I didn't ever share anything on that part. But even for my mom also, I mean, initially when even not started the therapy with Kokila ma'am, before that therapy, she would question me, you are taking therapy for 3 months, still you don't see any, I don't see any difference, so what is happening? So those are actually a difficult It's question. like you have to perform well in your they are therapy also. वहाँ पे भी exactly. result दिखाओ, भाई वहाँ पे भी वहाँ result पे भी. दिखाओ. So This is- actually that would Actually, I know many contribute husbands more. also who do this. Thankfully, your husband didn't do. Many husbands would also do this. कि अरे Exactly. इतने पैसे खर्च कर रहे हो तुम 3 महीने थेरेपी में जा रही हो अभी भी तुमको तो गुस्सा आ रहा है थेरेपी में क्या फर्क पड़ा? Right. ये भी ऐसे ही इसीलिए I think that women should be financially independent also for that. I mean, that's a that very is important the point. very I tell important. this to So women, that be you are financially independent. So you are not dependent on anyone for your own healing. well-being, for your own for healing. that is really required. But yeah, instead of that, it is Because true today, you know, that women are today in Indian society. There's a huge dilemma. Like women like you, husband wife are both working, living alone. Children के लिए support नहीं है तो stress भी बढ़ ही जाता है. पहले ये होता था कि माँ बाप घर पे होते थे, बच्चे संभालते थे, घर संभालते थे तो थोड़ा easy था. right. But उसके साथ दूसरा भी कॉम्प्लिकेशन. फिर उसमें फिर घर में इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम्स, वो हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस मोर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब हर कुछ में ही प्रॉब्लम है. क्या है सॉल्यूशन? आई रियली डोंट नो, बिकॉज अभी हम ये भी बोल रहे हैं कि काम करना इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आप देखो कि वर्किंग वुमेन के लिए इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट. दे हैव टू मैनेज द हाउस होल्ड, देन ऑफिस, देन बच्चे, and everywhere you only need to perform, right? In office nobody is going to give you extra 2 credit points because you have a child. Right. They will say you have to perform. Your child score means you are performing well as a mother,
आपके घर अच्छे हैं, आपके डेकोरेशंस अच्छे हैं, तो आप अपना हाउस होल्ड चोर्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो एवरीवेयर यू हैव टू परफॉर्म काइंड ऑफ थिंग ना, It's मतलब so stressful. वुमेन के लिए भी कम नहीं है वो एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप हाउस होम मेकर बन जाते हो, टू अवॉइड ऑल दिस, देन देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, देन तो टू मच प्रेशर, देन यू विल बी ऑलवेज इन द गिल्टी दैट यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू और एनीवेयर। फिर कहेंगे कि सब कुछ छोड़ के घर पे बैठी और इतना क्या भी कर नहीं रहे कर हो? पा रही और हाँ बच्चे ने हाँ, परफॉर्म नहीं किया तो अरे और भी वो तो और भी हाँ इश्यूज है, और उनके लिए तो बच्चे और मम्मी का रिलेशनशिप और भी बुरा हो जाता है, हाँ बिकॉज बिकॉज दैट पूरा बिकम्स टाइम योर वो प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस। वो एक हाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बन जाता है ना एग्जैक्टली, बच्चा का. हाँ हाँ, फॉर होम मेकर मदर्स तो इट इज It इवन is very डिफिकल्ट। difficult. I agree. कहीं I पे think somewhere a balance is बैलेंस इज required. रिक्वायर्ड, राइट राइट, वही मतलब हम सब कुछ नहीं कर सकते सब हैं कुछ नहीं कर सकते. वो, You, और I उसको think वही वो प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतना ही हो सकता है, expectation set एक्सपेक्टेशन करो. सेट कर दो घर भाई इससे। गंदा रहे तो रहे भाई हाँ 2 दिन, रहेगी, क्या फर्क है. एग्जैक्टली, My हाँ mental health is more important than keeping my house in a good, एवरीथिंग इज, nice हाँ। decorated और space. वही वो हो गया है, हम लोग बहुत ज्यादा ना मतलब दिखाव पे चले गए हैं, बट शोइंग ऑफ थिंग्स, कि मेरे बेटा भी अच्छा कर रहा है उसके लिए भी पोस्ट करना है, घूमने गए हाँ तो घर भी. उसके भी पोस्ट करना है, और सब में, और आप शायद मर रहे हो अंदर ही अंदर, बट वो And सोशल people see मीडिया you, में, they don't see inside of you. So they are हाँ only seeing you and creating more pressure on them, exactly. So I'm on talking their about own my selves. senior who committed suicide now. I mean, nobody would expect. He's a happy go person, always smiling, everything. He committed suicide when his elder daughter was going through the CBSC exam, and he's the director of our company. So financially, Everything family good. wise, everything looks perfect, right? But still, I mean, obviously that person was so much in misery, right? That's why he committed And one would suicide. never really know what was going on हाँ inside his head. exactly, If nobody knows, only it's very we could support 1 or 2 people we know who are going through this challenges, not judge, not advise, not exactly, compare, not only show them listen to toxic them, positive, only हाँ, listen. Sometimes even listening just is helps. extremely important, yeah. Wonderful. I think that was a great conversation, Swati. Thank you. She came all the way from Kolkata to Ahmedabad with her family, and I'm so grateful that Yeah. we could have this conversation. I'm really, really hoping, and I know that at least 1 or 2 people out there, or maybe more, will be listening, and maybe some things that she said is exactly just for you. So I hope that you could relate to some of the things she said. If there are any thoughts, any questions, please post in the comments. And if you really like my channel, then please do not forget to like and subscribe, because I post a lot of content on parenting and mental health, along with a few podcasts here and there on Real People, Real Stories, where I talk to people who are, I would say, mental health warriors, who have the courage to be vulnerable on this platform, talk about their challenges they faced and how they overcame it. And the only objective is so that you can come out and talk about it, you can acknowledge it, and you can do something about it. So thank you so much, Swati. My pleasure, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात अच्छा लगा, करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, and I am कुछ so और है आपके grateful मन में to जो you. मिस हो गया हो, मैंने पूछा नहीं है, वो हाँ भी आप बता दीजिए. अगर कोई और पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है हम बाद में ऐड कर सकते हैं. हाँ, I think moreover we covered. I feel like that part now of after motherhood challenges, that also needs to be talked about. Please, Yeah. please. Yeah. What So was it? after a child's birth, it is very difficult for any new mothers to go through. I think that time na some focus should be given to the mother. Not just the child. Not just the child. We don't get any attention. I mean, as a mother, I remember I have gone through. It was so difficult. Everyone's focus is that and everyone will give advices to the new mother, why you haven't done this, why you haven't not done that, rather than supporting her. It's more of like a criticism or something, and everything is blamed to that mother, new mother who is ऑलरेडी ओवरवेल्म, मतलब overwhelmed किसी ने with so प्रिपेयर many, किया नहीं है, हाँ पता नहीं है क्या हो रहा है, बॉडी में चेंजेस है, हार्मोन में चेंजेस है, पेन हो रहा है, कितना सब Correct. कुछ हो रहा है, बच्चा रो रहा है. आई रिमेम्बर व्हेन माय डॉटर वाज वेरी फर्स्ट टाइम मदर, आई वाज विद हर. वो रात भर वो भी रोती थी, मैं भी रोती थी. हाँ, right. And I was like अच्छा, so fed up because she wouldn't let me sleep like you. I love to sleep. I love my sleep.
एग्जैक्टली वो नहीं सोती थी, मैं नहीं सोती थी, वो रोएगी, मैं रोया, हे भगवान ये क्या और हो रहा बाय द है। टाइम वो 2 घंटे खत्म होता था, मतलब इसको सुला के सोने के टाइम दूसरा टाइम आ जाता था, तो कब इट्स सो। वेरी हार्ड, हाँ, इट्स वेरी हार्ड विदाउट सपोर्ट सिस्टम एंड विदाउट गिविंग ज्ञान a support system is हाँ, extremely required. करेक्ट, सपोर्ट सिस्टम Everyone विदाउट ज्ञान। everyone is like focusing on child and तुमने ही कुछ किया होगा ताकि ये बच्चा रो रहा है या रो हाँ, रही है, नहीं, तो सही बात है। वो समटाइम्स आई बहुत, थिंक न्यू मदर्स एंड नोबडी टीचेस मदरहुड, हाँ, नोबडी टीचेस पेरेंटिंग। वो भी बहुत मिसिंग है, और बहुत सोशली बहुत जजमेंट होता है, क्रिटिसिज्म होता है। एंड yeah, and then for men also, I would say, I think men, they, for men's health also, it is I want really more and more required. men to come on my podcast and Yeah, talk about mental health. So if you are a man and if you've been through a mental health journey, healed please yourself, reach out. please talk, come on my platform. I would love to talk to you so that more and more men and young boys can normalize conversations around mental health. Wonderful. Exactly. Thank you, Swati. Thank you, ma'am. Lovely. Yeah.